امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کو آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم۔ ایران نے 48 گھنٹے کے اندر آبنائے ہرمز نہ کھولی تو سخت کارروائی ہوگی۔ ایران کے بڑے بجلی گھر سمیت مختلف پاور پلانٹس کو مرحلہ وار نشانہ بنائیں گے۔ صدر ٹرمپ کی ٹروتھ سوشل پر بیان۔ ٹرمپ نے ایسا کیا تو مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے توانائی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جائے گا۔ امریکی صدر کی دھمکی پر ایران کا رد عمل۔ امریکی اور اسرائیل کے نتنز میں جوہری تنصیبات پر حملوں کے بعد ایران کی بڑی جوابی کارروائی۔ اسرائیل کے شہر دمونا اور رعد میں میزائل حملے۔ رعد پر حملے میں 6 افراد ہلاک، 100 سے زائد زخمی۔ جنوبی شہر دمونا پر حملے میں 50 سے زائد افراد زخمی۔ دمونا میں اسرائیلی جوہری تنصیبات کی ایک عمارت کو نشانہ بنایا گیا۔ ہسپتالوں میں ہنگامی حالت نافذ۔ عرب میڈیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو جنوبی اسرائیلی شہر دمونا اور اراد میں ایران کے جوابی حملوں سے پریشان۔ یہ اسرائیل کے لیے ایک انتہائی مشکل شام ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ دمونا اور اراد پر ایران کے ہولناک حملوں کے بعد اسرائیل نے پورے ملک میں تعلیمی اداروں میں چھٹی دے دی۔ ایرانی میزائلی حملوں نے جنوبی اسرائیلی شہر دمونا اور اراد میں بڑی تباہی مچا دی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی تھائی لینڈ کے ہم منصب انوتن شرن ویراکول کو دوبارہ وزیر اعظم بننے پر مبارکباد۔ یقین ہے کہ ان کی قابل قیادت میں تھائی لینڈ پائیدار ترقی اور دیر پا امن اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ پاکستان اور تھائی لینڈ کے درمیان دوستانہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے وزیر اعظم انوتن شرن ویراکول کے ساتھ مل کر کام کرنے کا منتظر ہوں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ایکس پر پیغام۔ پاکستان کو آبی قلت کا چیلنج درپیش۔ موسمیاتی تبدیلی، غیر متوقع بارشوں اور گلیشیئرز کے نظام میں تبدیلیوں نے آبی قلت کے خطرے کو مزید بڑھا دیا۔ آبی وسائل کے تحفظ کے لیے اصلاحاتی اقدامات پر عمل درآمد جاری۔ بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی کی شدید مذمت۔ مشترکہ آبی وسائل کا بطور ہتھیار استعمال انتہائی تشویشناک ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے عالمی یوم آب پر پیغامات۔ حکومت کے بروقت اقدامات سے تیل کے وافر ذخائر موجود۔ حکومت عوام پر مزید بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی، بروقت اقدامات یقینی بنائے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے مشکل صورتحال میں بڑی دور اندیشی کے ساتھ فیصلے کیے۔ کفایت شعاری کے تحت 50% گاڑیاں گراؤنڈ کر دی گئی ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی بچت کے لیے عوام کا تعاون ضروری ہے۔ ذمہ دار قوم ہونے کا ثبوت دینا ہوگا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کے ہمراہ لاہور میں نیوز کانفرنس۔ پنجاب کے نگہبان رمضان پیکج کا عوامی خدمت کا تاریخی ریکارڈ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا احساس اور خدمت کا ہدف پورا ہونے پر اظہار تشکر۔ عوام کو عزت و احترام سے دہلیز پر امدادی رقوم پہنچانے کا ہدف پورا ہونے پر خوشی کا اظہار۔ نگہبان رمضان پیکج میں 4.5 لاکھ خاندانوں کو امدادی رقوم پہنچائی گئی۔ 40 لاکھ روزے داروں نے 422 نگہبان دسترخوان پر روزہ افطار کیا۔ رمضان میں پرائز کنٹرول کے لیے صوبہ گیر مہم کے مثبت نتائج سامنے آئے۔ مریم نواز شریف۔ عید الفطر کا دوسرا دن، کل کے میزبان آج کے مہمان۔ گھروں میں میٹھے اور نمکین کھابے، دسترخوان کی زینت۔ شہریوں کا تفریح گاہوں کا بھی رخ۔ چڑیا گھروں اور پارکوں میں بچوں کی موج مستی۔ عیدی کے پیسوں سے گھڑ سواری اور جھولوں کے مزے لیے ہر طرف خوشیوں کی بہار۔ تفریحی مقامات پر سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات۔ وطن عزیز کا دفاع ہماری اولین ترجیح ہے۔ ہم چوکس ہیں تاکہ قوم پرامن ماحول میں خوشیاں منا سکے۔ کسی بھی قسم کی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ عید الفطر پر لائن آف کنٹرول کے اگلے محاذوں پر تعینات پاک فوج کے جوانوں کا قوم کے نام خصوصی پیغام۔ سخت موسمی حالات اور برف پوش پہاڑوں پر فرائض انجام دیتے ہوئے جوانوں کی ملک بھر کے عوام کو عید کی مبارکباد۔ ہمارے شہداء ہمارا افتخار۔ عید الفطر پر شہداء کے لواحقین کے جذبات و احساسات رتبہ شہادت پر سر فخر سے بلند۔ عید الفطر کا تہوار ہمیں ان عظیم بیٹوں کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے ملک و قوم کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ہمیں اپنے شہید والد پر ہمیشہ فخر رہے گا، ان کی عظیم قربانی کو کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ عید کے پرمسرت موقع پر لانس نائک اجمل شہید کے لواحقین کا اظہار خیال۔
वतन पर कुर्बान होने वाले पाक फौज के शहदा को कौम का खराज अकीदत। मुल्तान के सपूत सिपाही सरमद सईद शहीद की लाजवाल कुर्बानी खानदान के लिए बाइस फ़ख्र बन गई। सरमद सईद ने गुज़श्ता साल पाक अफगान बॉर्डर पर जाम शहादत नोश किया। वालिदैन का वतन के लिए जान का नजराना पेश करने पर अपने बेटे पर फ़ख्र का इजहार। शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वतन अजीज़ का दिफा हर कीमत पर नाकाबिल तस्वीर रहेगा। ईद उल फितर के दूसरे रोज सूबाई दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। तफरीही मकामात की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। वन व्हीलिंग और हवाई फायरिंग पर जीरो टॉलरेंस। कानून शिकनी करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। पुलिस अफसरान और अहलकार तफरीही मकामात के अतराफ मशकूक सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखें। CCPO लाहौर की पुलिस फोर्स को अलर्ट होकर फराइज सर अंजाम देने की हिदायत। फ्रांस भर में बल्दियाती इंतखाबात का फैसला कुन मरहला आज होगा। मुतअद्दिद शहरों में सख्त और कांटेदार मुकाबलों का इम्कान। गुज़श्ता इतवार पहले मरहले के बाद आज दूसरे मरहले में पहले और दूसरे नंबर पर आने वाले उम्मीदवार आमने सामने हैं। इंतखाबात में 3 पाकिस्तानी नौजवान भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों में अपने अपने मरकजी उम्मीदवारों के साथ भरपूर इंतखाबी मुहिम में शरीक हैं। पेशावर ज़ल्मी का मद्दाहों को ईद का बड़ा तोहफा। ऑफिशियल रीजनल एंथम ज़मुंग ज़ल्मी रिलीज। खैबर पख्तूनख्वा की रिवायात, बहादुर अवाम और सकाफती शनाख्त को खूबसूरत खिराज तहसीन। मशहूर बैंड खुमारियां और जैम बॉयज की आवाज़ों का जादू। रिवायती धुनों और जदीद मुसीकी का शानदार इम्तिजाज। नया रीजनल एंथम सोशल मीडिया पर वायरल। ज़ल्मी मैदान तराख लशमला बसा तू जगह द पुख्तो पहर मैदान ज़ल्मो क्रपूर त जगह ची वतन मुदिनी मान दूध दे मैदान रंग दा जहान दीन कुर्बान। PSL फ्रेंचाइज रावलपिंडीज ने सीजन 11 के लिए अपनी ऑफिशियल किट लॉन्च कर दी। होम और एवे मैचेस के लिए मुनफरिद जर्सियां मुतारिफ, साख्त और रंगों का हसीन इम्तजाज। रावलपिंडीज की किट में शहर के स्ट्रीट कल्चर की झलक नुमाया। रवायती डिज़ाइन से हटकर जदीद ग्राफिक्स और शौक रंगों का इस्तेमाल जर्सी पिंडी के नौजवानों के जोश और बोल्ड अंदाज की हकीकी अक्कास है। और स्लोवेनिया के तादीज पोगाचर ने मिलान सैन रेमो साइकिलिंग रेस अपने नाम कर ली। रेस के दौरान हादसे का शिकार होने के बावजूद पोगाचर की शानदार वापसी। पोगाचर ने 298 किलोमीटर का तवील फासला 6 घंटे 35 मिनट और 49 सेकंड्स में तय किया। बरतानिया के टॉम पिडकॉक महज आधे पहिए के फर्क से दूसरे नंबर पर रहे। पोगाचर 11 मोनोमेंट रेसर्स जीतकर रॉजर डी वेलमनिक के साथ मुश्तरका तौर पर दूसरे नंबर पर आ गए। तादेश पोगाचर दुनिया के 5 मोतबर तरीन रेसेस में से 4 जीत चुके हैं। The Ineos Grenadiers riders down in that one. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में PTV न्यूज़ के देखने और सुनने वालों को ईद उल फितर का दूसरा रोज़ मुबारक हो। दिन 12 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूँ मनाजिर हुसैन। मैं हूँ नाजिया खान। खेल और खिलाड़ियों की खबरें लिए मैं आपके साथ रुमैसा कुरैशी और खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। तफसीली खबरों का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान की जौहरी तनसीबात को निशाना बनाए जाने के बाद ईरान ने इसराइल के जनूबी शहरों अराद, देमोना और वस्ती इलाकों पर क्लस्टर वॉरहेड वाले मिसाइलों से हमले किए हैं। ईरान ने इसराइल के शहर देमोना के बाद अराद पर बड़ा हमला किया है, जिसमें बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। हमलों में अब तक की इत्तलात के मुताबिक 6 अफराद हलाक जबकि 150 से ज़ायद जख्मी हो गए हैं। इसराइल का दिफाई निज़ाम बुरी तरह नाकाम हो गया है। 450 किलोग्राम वजनी मिसाइल हदफ पर गिरा, जिसके नतीजे में 6 इसराइलियों के मरने और 80 के से ज़ायद जख्मी होने की इत्तलात हैं। देमोना में भी 39 से होनी जख्मी हुए हैं। देमोना में इसराइल की एटमी तनसीबात मौजूद हैं। एटमी तनसीबात पर फिलहाल किसी किस्म के नुकसान की इत्तला नहीं मिली। देमोना और अराद पर ईरान के हौलनाक हमलों के बाद इसराइल ने पूरे मुल्क में तालीमी इदारों में छुट्टी दे दी है। इसराइली वज़ारत तालीम ने ऐलान किया है कि इतवार और पीर के रोज़ कोई शख्स जिस्मानी तौर पर किसी तालीमी इदारे में न रहे।
اسرائیل کی وزارت صحت نے تصدیق کی ہے کہ جنگ کے آغاز سے اب تک 4292 افراد زخمی ہو کر مختلف ہسپتالوں میں منتقل ہو چکے ہیں۔ تازہ ایرانی حملوں میں بھی زخمیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری جانب تہران کے مشرقی اور مغربی علاقوں میں خوفناک دھماکے سنے گئے ہیں۔ تہران کے قریبی شہر دماوند میں 3 دھماکے سنے گئے ہیں۔ تہران کے قریبی شہر پردیس میں بھی دھماکے سنے گئے ہیں۔ دماوند میں ایران کا بڑا بجلی گھر موجود ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے ایرو اسپیس فورس کے کمانڈر سید ماجد موسوی نے کہا ہے کہ آج کے بعد اسرائیل کے مقبوضہ علاقوں پر ایران کے بیٹوں کا غلبہ قائم ہو گیا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے ایرو اسپیس فورس کے کمانڈر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل نے جن علاقوں پر قبضہ کر رکھا ہے ان کے آسمانوں پر اب ایرانی میزائلوں کو تسلط ہے۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو 48 گھنٹوں میں آبنائے ہرمز کھولنے کی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ آبنائے ہرمز مکمل نہیں کھولی تو امریکہ ایران کے بجلی گھر مرحلہ وار تباہ کر دے گا۔ پہلے سب سے بڑے پاور پلانٹ کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایران میں اہداف وقت سے پہلے حاصل کر لیے۔ تہران اب ڈیل چاہتا ہے لیکن میں نہیں چاہتا۔ امریکہ نے ایران کو نقشے سے مٹا دیا۔ ایرانی قیادت بحریہ اور فضائیہ کو ختم کر دیا گیا۔ ایران نے توانائی انفراسٹرکچر پر حملے کی صورت میں جوابی کارروائی کا اعلان کر دیا۔ واضح کیا کہ خطے میں موجود امریکی توانائی انفراسٹرکچر، آئی ٹی نظام اور پانی کی تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے گا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اس بار جواب پہلے سے زیادہ شدید ہوگا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے انوتن چرن ویراکول کو تھائی لینڈ کی وزارت عظمیٰ کا منصب دوبارہ سنبھالنے پر مبارکباد دی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے تہنیتی پیغام میں وزیر اعظم نے اظہار کیا اس یقین کا کہ انوتن چرن ویراکول کی قیادت میں تھائی لینڈ پائیدار ترقی، دیرپا امن اور خوشحالی کی راہ پر گامزن رہے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ وہ تھائی لینڈ کے ہم منصب کے ساتھ مل کر دونوں ملکوں کے درمیان دوستانہ تعلقات کو مزید مضبوط اور مستحکم بنانے کے خواہاں ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے صدر مملکت آصف علی زرداری کو ٹیلی فون کیا اور عید الفطر کی مبارکباد کا تبادلہ ہوا۔ وزیر اعظم نے صدر مملکت کو خطے کے سربراہان مملکت سے ان کے حالیہ رابطوں پر بریفنگ دی۔ خطے کی مجموعی صورتحال اور اس کے پاکستان پر اثرات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر نے بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال کے تناظر میں قومی مفادات کے تحفظ اور مربوط حکمت عملی کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ قومی اتفاق رائے اور مؤثر سفارتی روابط کے ذریعے پاکستان کے مفادات کا ہر سطح پر دفاع کیا جائے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے عید الفطر کے موقع پر بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ وزیر اعظم نے شاہ حمد اور بحرین کے برادر عوام کو عید کی مبارکباد دی۔ شاہ حمد نے بھی وزیر اعظم کو عید کی مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے خطے میں جاری جنگ بالخصوص بحرین کے خلاف کیے گئے حملوں کی شدید مذمت کا اعادہ کرتے ہوئے قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے بحرین کے صبر اور تحمل کو سراہتے ہوئے مشکل کی اس گھڑی میں بحرین کے لیے پاکستان کی یکجہتی اور حمایت کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے بحرین کے شاہ کو خطے میں امن کی بحالی کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں سے بھی آگاہ کیا۔ انہوں نے بحرین کے شاہ کو یقین دلایا کہ پاکستان جاری جنگ کے خاتمے کے لیے تمام سفارتی کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ اور علاقائی امور پر قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے عید الفطر کے پرمسرت موقع پر ترکمانستان کے صدر سردار بردی محمدوف سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ وزیر اعظم نے ترکمانستان کی قیادت اور عوام کو عید الفطر کی مبارکباد دی۔ صدر ترکمانستان نے بھی نہایت گرمجوشی سے پاکستانی عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کی مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا اور باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں خصوصاً تجارت، توانائی، روابط اور علاقائی ترقی میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے جاری علاقائی اقدامات میں تعاون بالخصوص باہمی مفاد کے منصوبوں کو آگے بڑھانے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر اور پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ وزیر اعظم نے سروسز چیفز کو عید الفطر کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے سیکیورٹی فورسز کے جوانوں اور افسران کو خراج تحسین پیش کیا جو عید کے دن بھی اپنے اہل و عیال سے دور سرحدوں پر پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ عید الفطر کی خوشیاں افسروں اور جوانوں کے ساتھ منانے کے لیے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کرم کا دورہ کیا۔ انہوں نے عید کی نماز ادا کی اور ملک کی سلامتی، امن و خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی۔
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مسلح افواج کو دل کی گہرائیوں سے عید کی مبارکباد دی اور ان کے بے لوث خدمات، بلند حوصلے اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف کی۔ فیلڈ مارشل نے حالیہ آپریشنز کی کامیابیوں کو اجاگر کرتے ہوئے آپریشن غضب للحق میں فوجی جوانوں کی بہادری اور عزم کو خراج تحسین پیش کیا، جنہوں نے دہشت گردوں کے نیٹ ورکس کو ختم کیا اور سرحدی علاقوں میں امن قائم کیا۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ پاکستان کے خلاف افغان سرزمین کا استعمال کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے عزم کو دہرایا۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ یہ کامیابیاں شہداء کی قربانیوں اور افسران اور سپاہیوں کی غیر متزلزل کوششوں کا نتیجہ ہیں۔ انہوں نے مسلح افواج کے جذبے اور ثابت قدمی پر فخر کا اظہار کیا اور پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے پاک فوج کی غیر متزلزل وابستگی کو دہرایا۔ اس سے پہلے کرم پہنچنے پر کور کمانڈر پشاور نے فیلڈ مارشل کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس موقع پر انہیں علاقے کی سیکیورٹی اور آپریشنل صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا رمضان المبارک میں احساس اور خدمت کا ٹارگٹ پورا ہونے پر اظہار تشکر کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا کہ پنجاب نگہبان رمضان پیکج نے 2026 میں عوامی خدمت کا تاریخی ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ خوشی کے لمحات میں کسی کو تنہا نہ چھوڑنے کا عہد پورا ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ عوام کو پہلی مرتبہ عزت و احترام کے ساتھ براہ راست دہلیز پر امدادی رقوم پہنچانے کا ہدف پورا ہونے پر خوش ہوں۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ نگہبان رمضان پیکج میں 4.5 لاکھ خاندان، تقریباً 2.5 کروڑ افراد کو عزت و احترام کے ساتھ امدادی رقوم پہنچائی گئیں۔ پنجاب میں پہلی مرتبہ مریم کو بتائیں کے تحت 45,000 خاندانوں کو 10,000 روپے دیے گئے۔ صوبے بھر میں 40 لاکھ روزے داروں نے 422 نگہبان دسترخوانوں پر روزہ افطار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلی مرتبہ رمضان میں پرائس کنٹرول کے لیے صوبہ گیر مہم کے مثبت نتائج سامنے آئے۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ صوبے بھر کے اشیاء ضروریہ کے نرخ میں مثالی کنٹرول دیکھنے میں آیا۔ صوبے بھر میں 75 شاندار رمضان بازاروں میں روزانہ 5.5 لاکھ سے زائد شہریوں نے خریداری کی، جبکہ منورٹی کارڈ کے ذریعے 1,57,000 سے زائد کرسچن فیملیز کو 10,000 روپے دیے گئے۔ عالمی یوم آب کے موقع پر صدر آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ پانی کی کمی کا اثر سب پر یکساں نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ محفوظ اور قابل اعتماد پانی کی فراہمی کو قومی ترجیح بنانا ضروری ہے۔ اس کے لیے پانی کے وسائل کا بہتر انتظام، پانی کے نظام میں سرمایہ کاری اور منصوبہ بندی اور فیصلہ سازی میں خواتین کی زیادہ شمولیت ضروری ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ آبادی میں اضافے اور موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث پانی پر دباؤ بڑھ رہا ہے، اس لیے ہمیں اس کا استعمال زیادہ ذمہ داری سے کرنا ہوگا۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ بھارت کی جانب سے معاہدہ سنتاس کی یک طرفہ معطلی کی شدید مذمت کا اعادہ کرتا ہوں۔ مشترکہ آبی وسائل کو بطور ہتھیار استعمال کرنا نہایت تشویشناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے اقدامات خوراک اور معیشت کے تحفظ کو خطرے میں ڈالتے ہیں اور لاکھوں افراد کے روزگار کو متاثر کرتے ہیں۔ آج پاکستان اور دنیا بھر میں یوم آب منایا جا رہا ہے۔ اس سال یہ دن پانی اور صنفی مساوات، جہاں پانی بہتا ہے وہاں برابری بڑھتی ہے کے عنوان سے منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے دن کی مناسبت سے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ پاکستان کو آبی قلت کا چیلنج درپیش ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں بارشوں کے غیر متوقع پیٹرن اور گلیشیئرز کے نظام میں تبدیلیوں نے آبی قلت کے ان خطرات کو مزید بڑھا دیا ہے۔ حکومت صاف پانی تک رسائی کو بنیادی انسانی حق سمجھتے ہوئے پرعزم ہے کہ پانی کے انتظام اور فیصلہ سازی کے عمل میں خواتین کی نمائندگی کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت قومی آبی پالیسی کے دائرہ کار میں متعدد اہم اصلاحاتی اقدامات کر رہی ہے تاکہ مستقبل کے لیے پانی کے وسائل کو محفوظ بنایا جا سکے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ذخیرہ آب میں اضافے کے لیے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت وفاقی حکومت 18 چھوٹے، درمیانے اور بڑے ڈیمز کی تعمیر پر کام کر رہی ہے۔ ڈیمز کے علاوہ حکومت کا ہدف ہے کہ نہری نظام کی کارکردگی میں بہتری کے ذریعے پانی کے ضیاع میں 33% کمی اور پانی کے مؤثر استعمال میں 30% اضافہ کیا جائے تاکہ کم پانی میں زیادہ پیداوار کے حصول کو ممکن بنایا جا سکے۔ دنیا بھر میں آج عالمی یوم آب منایا جا رہا ہے، لیکن پاکستان کے لیے دن تشویش کی علامت بن چکا ہے۔ بڑھتے ہوئے درجہ حرارت اور گلوبل وارمنگ کے اثرات سے ملک میں پانی کی قلت سنگین ہو رہی ہے، جبکہ زیر زمین پانی کی سطح سینکڑوں فٹ نیچے جا چکی ہے۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں سعید وزیر کی یہ رپورٹ۔ وفاقی وزراء عطا اللہ تارڑ اور علی پرویز ملک نے لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے مشکل صورتحال میں بڑی دور اندیشی کے ساتھ 45 ارب روپے کا بوجھ عوام پر ڈالنے کی بجائے خود برداشت کیا۔
हुकूमत किफ़ायत शुमार इक़दामात पर सख्ती से अमल पैरा है। पेट्रोलियम मसनूआत की बचत के लिए आवाम का ताउन ज़रूरी है। तफसील शेयर कर रहे हैं ताहिर जाफरी। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और उनकी मुआशी टीम के बरवक्त और दानिशमंदाना इक़दामात से मुल्क में तेल के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हुकूमत ने 45 अरब रुपए का बोझ अवाम पर डालने की बजाय खुद बर्दाश्त किया। पेट्रोलियम मसनूआत की बचत के लिए अवाम का ताउन नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म इस बारे में बड़े फिक्रमंद भी रहे और उन्होंने कहा कि जी हम बिल्कुल किफ़ायत शारी सादगी को अपनाएंगे और अवाम पर बोझ नहीं डलने देंगे। और आपने देखा कि हम अपनी अपनी वजारतों के जिम्मेदार हैं। हमें भी हिदायत मिली 60% गाड़ियां ग्राउंड कर दें, 50% तेल कम कर दें, तनख्वाह नहीं लेंगे, वो सारा कुछ हो रहा है और उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है वज़ीर आज़म साहब की तरफ से। मगर देखिए ये एक इज्तिमाई मसला है। मैं बहुत मुद्दबाना ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम तेल की बचत के लिए गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें और हम कंजर्वेशन की तरफ जाएं। हम जितना हो सके कार पूल करें, जहां पे इज्तिमाई सफर को हम फरोग दें, जहां पे 4-5 लोगों ने एक ही जगह पे जाना है, हम उसके लिए कार पूलिंग का सिस्टम अपनाएं, एक गाड़ी इस्तेमाल करें। जिनके पास एक से ज्यादा गाड़ी है वो छोटी कैपेसिटी वाली गाड़ी इस्तेमाल करें ताकि तेल जो है वो कम से कम खर्च हो। तो ये बचत अब हमें पूरी कौम को करनी होगी। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा कि जंग के बायस पूरे खित्ते में सूरत हाल कशीदा है और मुआशी मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वज़ीर पेट्रोलियम ने कहा कि हुकूमत किफ़ायत शारी इक़दामात पर सख्ती से अमल पैरा है। जो आग हमारे एक हमसाये मुल्क से शुरू हुई थी उसने पूरी खलीज को अपनी लपेट में ले लिया है और इसकी वजह से जो तकालीफ माशी तौर पे हमारे सामने आ रही हैं तो उसकी वजह से आज यकीनन हमारी खुशियां मधम हैं। आज तवानाई की कीमतें हैं, जो खलीज के अंदर जो क्रूड की कीमतें हैं वो हालिया तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर। वज़ीर आज़म साहब ने अपनी सारी टीम को, माशी टीम को इकट्ठा करके किफ़ायत शारी और अपनी पेटी कस के जो इखराजात के अंदर कटौती करके जिस हद तक पैसे समेट सकते थे उन्होंने उसका इंतजाम किया और तकरीबन 27 अरब रुपए एक खसूसी फंड के अंदर मुहैया किए। वफाकी वज़ीर ने कहा कि वज़ीर आज़म अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए कोशा है। अवाम किफ़ायत शारी मुहिम के तहत कम से कम सफ़र करें और गैर ज़रूरी तफरीह से इज्तनाब करें। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। जनाब, ईद के दूसरे दिन भी मिलने मिलाने और दावतें उड़ाने का सिलसिला जारी है। जो कल मेहमान थे आज मेज़बानी के फ़राइज़ निभा रहे हैं और अपने प्यारों के लिए लजीज खानों का दस्तरखान बिछा रहे हैं। ईद का दिन मौज मस्ती करते, सैर सपाटे करते गुजरा और रात अपनों की संगत और गपशप में गुजरेगी, क्योंकि ईद के दिन हैं, मौका भी है और दस्तूर भी। मुल्क भर में ईद उल फितर के दूसरे रोज़ गहमा गहमी जारी है। हल्ला गुल्ला और सैर व तफरीह, मज़े मज़े के खाने और ठंडी आइसक्रीम के साथ बच्चों के साथ साथ बड़े भी मौज मस्ती करके ईद की खुशियाँ मना रहे हैं। कहीं सैर व तफरीह तो कहीं कश्ती की सवारी तो कहीं झूलों के मज़े तो कहीं मिठाई कुल्फ़ी के मज़े। बच्चे ईदी के पैसे खर्च करने के लिए दूसरे दिन तफरीहगाहों और पार्कों में झूले झूलते और मज़े मज़े के खाने खाने में मसरूफ़ नज़र आए। ईद उल फितर के मौके पर लाइन ऑफ कंट्रोल के अगले महाजों पर तैनात पाक फौज के जवानों का कौम के नाम खुसूसी पैगाम। सख्त मौसमी हालात और बर्फपोश पहाड़ों पर फ़राइज़ अंजाम देते हुए जवानों की मुल्क भर के अवाम को ईद की मुबारकबाद। LOC पर तैनात पाक फौज के बहादुर जवानों ने अपने पैगाम में कहा है कि वतन अजीज़ का दिफा अव्वलीन तरजीह है। हम चौकस हैं ताकि कौम पुरअमन माहौल में खुशियाँ मना सके। किसी भी किस्म की जाहिलियत का भरपूर जवाब देने के लिए हम हमा वक्त तैयार हैं। ईद के पर्व मुसर्रत मौका पर सरहदों से हम तुम्हें सलाम कहते हैं, बर्फानी चोटियों से खुशियों का पैगाम कहते हैं। हम सरहदों की बुलंदियों पर डटे हुए हैं, वतन की मोहब्बत में आसान से जुड़े हुए हैं। हमारी रगों में लहू नहीं जज्बा पाकिस्तान है, हर कदम पर वफा, हर निगाह में ईमान है। दुश्मन के इरादे हमारी ललकार से कांपते हैं, हमारे हौसलों से इनके गरूर के महल टूटते हैं। हम चट्टानों की तरह हर तूफान के आगे खड़े हैं, तुम्हारे सुकून की खातिर हर खतरे से लड़े हैं। मिट्टी की खुशबू हमने
जिंदगी बन के पलती है। यकीन रखो हर घड़ी सरहदें महफूज हैं। तुम ईद मनाओ खुशी से, हम हर दम खड़े हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। हमारे शोहदा हमारा इफ्तिखार। ईद उल फितर के मौके पर शोहदा के लवाहिकीन के जज्बात व एहसासात रुतबा शहादत पर सरफखर से बुलंद। ईद उल फितर का त्यौहार हमें उन अजीम बेटों की याद दिलाता है जिन्होंने मुल्क व कौम के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अपनी ज़िंदगियों का नजराना पेश किया। ईद के इस पुरमसरत मौके पर लांस नायक मोहम्मद अजमल शहीद के लवाहिकीन ने कहा कि हमें अपने शहीद वालिद पर हमेशा फ़ख्र रहेगा और हम उनकी अजीम कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं करेंगे। मेरी वालिदा बताती हैं कि मेरे वालिद साहब एक इंतहाई दलेर इंसान थे। उनकी ख्वाहिश थी कि मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूं। तो इस मुकाम तक पहुंचने में मेरे वालिदैन की जो एफर्ट्स हैं वो तो हैं ही हैं। अगर पाकिस्तान आर्मी मुझे सपोर्ट ना करती तो शायद आज मैं जिस मुकाम पे बैठा हूँ तो मैं इस मुकाम को अचीव ना कर पाता। इन्हीं मेहनतों और कोशिशों की वजह से पाकिस्तानी फौज और अवाम ने दुनिया भर में एक अपना मुनफरिद मुकाम हासिल कर लिया है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। मेरे बाबा सूबेदार मोहम्मद सरवर शहीद 10 मई 2013 को उस्तों के इलाके में शहीद हुए। उन्होंने सीने पे गोलियां खाई लेकिन उसके बावजूद भी वो काफी देर तक लड़ते रहे और आखिरकार शहीद हो गए। उनकी बहादुरी की वजह से उन्हें तमगा रसालत से भी नवाजा गया। बचपन में मेरे बाबा अक्सर मुझे और मेरी बड़ी बहन को कहा करते थे कि आपने हमेशा हार्ड वर्क करना है और अपने गोल्स को अचीव करने पे फोकस करना है। हम लोगों ने बहुत मेहनत की, अल्हम्दुलिल्लाह अपने गोल्स को अचीव किया। इसमें ना सिर्फ मेरी वालिदा बल्कि पाकिस्तान आर्मी की भी काफ़ी सपोर्ट थी। हमारी पूरी कौम को इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फख्र है। पाकिस्तान आर्मी सिर्फ बॉर्डर्स की हिफाजत नहीं करती बल्कि पाकिस्तान आर्मी अपने शोहदा के लवाहिकीन को भी कभी नहीं भूलती और उन्हें हर तरह से सपोर्ट करती है। मैं अपनी पाकिस्तानी कौम को यही पैगाम देना चाहती हूँ कि हमें अपने शोहदा की कुर्बानियों को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने हमारे मुस्तकबिल के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। हमारे शोहदा हमारा फ़ख्र। वतन की मिट्टी का कर्ज अपने खून से उतारने वाले पाक फ़ौज के शोहदा को पूरी कौम का खराज अक़ीदत। ईद उल फितर जैसे खुशियों और मोहब्बत के त्यौहारों के मौके पर शहीदों की यादें भी ताज़ा हो जाती हैं। मुल्तान के सपूत सिपाही सरमद सईद शहीद की जुदाई का गम अपनी जगह, मगर उनकी लाजवाल कुर्बानी ख़ानदान के लिए बाइस फ़ख्र बन गई। मिलदा सी मेरे पैर चुमदा सी मेरा बच्चा, रोज फोन करदा सी मेरे नाल गल करदा सी। उदण उन्हें गल नहीं कीती। शादी नमाज पढ़ के मैं आख्या अपने बेटे लिए दुआ करदी है, क्यों नहीं फोन आया। थोड़ी देर हुई है ना ते सानू फोन आ गया। उन्होंने दस्या सिपाही सरमद सईद शहीद हो गया। बहादुर सी सीने ते गोलियां खादियां मेरे बच्चे ने, ਉਹਦੇ बावजूद 3 दहशतगर्दां ਨੂੰ मारिया। मैनू फख्र है इस चीज से, मेरा बच्चा मुल्क की हिफाजत करदिया होया जामे शहादत पाई उन्होंने। आज ईद दा दिन है जी, बहुत मैनू याद आ रही है सरमद दी। बहुत अच्छे तरीके नाल असां ईद गुजारदे था, इकट्ठे ईद नमाज पढ़न जांदे था, फिर खाना खा के असां अपने रिश्तेदारां दे घर जांदे था। पहली ईद जिहड़ी असां सरमद तो बगैर गुजार रहे हैं, मगर मैनू फख्र है मेरा बच्चा शहीद होया। उन्हें मेरा और मेरी कौम दा सर फख्र नाल बुलंद किया। मेरा एक बेटा हो रहे, अगर इस मुल्क की हिफाजत वास्ते मेरे दूसरे बच्चे की भी जरूरत होवे ते मैं हाजिर हाँ। पाक फौज जेड़ा ऑपरेशन कर रही है दहशतगर्दां के खिलाफ बहुत अच्छा कर रही है। साडे शहीदां दा बदला लै रही है। इन्हां नूं चुन चुन के खत्म करना चाहिए। आज ईद का दिन है, मुझे मेरे भाई की बहुत याद आ रही है। वो मुझसे बड़े थे, मुझे ईद की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद साथ ले गए। आज मैं अकेला मस्जिद गया। उनकी कमी तो महसूस हो रही है, लेकिन मुझे फख्र है अपने भाई। उसने दहशतगर्दों से लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान की। मुझे इस बात पे भी फख्र है मेरे भाई ने अपने मुल्क के अमन के लिए जान का नजराना पेश। इस कुर्बानी से सिर्फ हमारे खानदान के लिए नहीं बल्कि पूरी कौम के लिए बाइस इफ्तिखार है। पाक फौज ने फितनतुल खवारिज के खिलाफ जो ऑपरेशन गज़बुल हक कर रही है, इसमें हम पूरी कौम को फख्र है। सरमद सईद शहीद बहुत अच्छा बच्चा था। इसको वर्दी पहनने का बहुत शौक था। जब ये पढ़ लिख कर फारग हुआ तो फिर ये फौज में भर्ती हुआ। हमें भी बहुत खुशी हुई और वो बहुत ज्यादा खुश था। हमारा बेटा जिंदा है, खुदा पाक का भी फरमान है शहीद जिंदा होता है। हमारे बेटे का तल्लुक उस अदारे से था जो अपने मुल्क की हिफाजत अव्वलीन तरजीह समझती है। हम आज इस वक्त पाकिस्तान में आजाद फजा में सांस ले रहे हैं, इसके पीछे हमारे शोहदा की
बेबहा कुर्बानियां हैं, तो हमारे शोहदा हमारे दिलों में हमेशा जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। ताहम बलोचिस्तान में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि शाम और रात के औकात में जनूबी खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में भी तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान बलोचिस्तान, जनूबी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। और अब आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर। नाज़रीन, अब आपको आगाह करते हैं, आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर कांगो का शहर कंशारसा रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 162 रिकॉर्ड किया गया। दूसरे नंबर पर साउथ कोरिया का शहर इंचोन रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 160 रिकॉर्ड किया गया। तीसरे नंबर पर लाहौर रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 152 रहा। चौथे नंबर पर भारत का दारुल हुकूमत दिल्ली रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 142 रिकॉर्ड किया गया। पांचवें नंबर पर भी भारत का शहर कोलकाता रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 129 रिकॉर्ड किया गया। जबकि छठे और आखिरी नंबर पर इंग्लैंड का शहर बर्मिंघम रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 127 रिकॉर्ड किया गया। मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। अब आपको वापस लिए चलेंगे मेंडस की जानिब। शुक्रिया कदीर। मज़ीद खबरों में आपको बताएंगे कि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में ईद के दूसरे रोज़ सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और सख्त हिफाजती इंतजामात यकीनी बनाए गए हैं। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना ने कहा है कि तफरीही मकामात और गिरजाघरों की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है और फैमिलीज़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा रहा है। वन व्हीलिंग और हवाई फायरिंग पर ज़ीरो टॉलरेंस है और कानून शिकनी करने वालों के साथ आहिनी हाथों से निपटा जाएगा। उन्होंने पुलिस फोर्स को अलर्ट रहने, सुपरवाइजरी अफसरान को सिक्योरिटी इंतजामात की मॉनिटरिंग को यकीनी बनाने, तफरीही मकामात के तरफ मशकूक सरगर्मियों पर कड़ी नज़र रखने की हिदायत की है। CCPO लाहौर ने कहा है कि तफरीही मकामात के तरफ मौसर गश्त और मसरूफ शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाया जाए। बात करते हैं मुल्तान की, जहां ईद उल फितर के दूसरे रोज़ शहरियों की बड़ी तादाद ने मिठाइयों की दुकानों का रुख किया, जबकि हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया और हज़रत शाहरुख आलम के मज़ारात पर हाज़री दी गई है। मज़ीद खबरों की जानिब बढ़ेंगे और यहाँ आपको आगाह करेंगे कि कल यौम पाकिस्तान वक़ार और एहतराम के साथ सादगी के साथ मनाया जाएगा। हुकूमत ने रवां साल 23 मार्च को परेड और इससे मुंसलिक तमाम तक़रीबात मुनक़्क़िद न करने का ऐलान किया है। ये फैसला खलीजी तेल बहरान और हुकूमती ऐलान करदा किफ़ायत शुमारी इक़दामात के तनाज़ुर में किया गया है। ताहम इस दिन को वक़ार और एहतराम के साथ सादा परचम कुशाई की तक़रीबात के ज़रिए मनाया जाएगा। ये इक़दाम इस बात को यकीनी बनाने के लिए किया जा रहा है कि कौम की यौम पाकिस्तान के नज़रियात से वाबस्तगी, इस्तकामत और गैर मुतज़लज़ल अज़्म के साथ वसी तर किफ़ायत शुमारी पॉलिसी को भी बरकरार रखा जाए। तमाम वज़ारतों, डिवीजन्स और महकमों को इस मौके पर सादगी और पुरवकार तरीके से बनाने की हिदायत की गई है, ताकि दिन की अहमियत और उसका हकीकी पैगाम बरकरार रखा जा सके। नाज़रीन, जहां माशरे के दीगर तबके ईद की खुशियां मनाते हैं, वहीं एक तबका ऐसा भी है जो ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतों से महरूम होने के बावजूद अपनी सादगी के तहत ईद की खुशियां अपने अंदाज में मना रहा है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। खाना बदोशों की बात हो रही है। ये खाना बदोश झुग्गियों वाले ईद किस तरह मनाते हैं, तफसील बता रहे हैं हाफिज मोहम्मद अली आबिद। ईद की खुशियां जहां घरों और शहरों में जोशो खरोश से मनाई जाती हैं, वहां झुग्गियों में रहने वाले खाना बदोश भी अपनी बसात के मुताबिक ईद मनाते हैं। इन बस्तियों में रहने वाले ज्यादातर अफराद रोजाना मेहनत मजदूरी करके अपने घर का चूल्हा जलाते हैं। ईद के दिन भी सादगी और कनात के साथ गुजरता है, मगर बच्चों के चेहरों पर खुशी दीदनी होती है। खाना बदोश खानदान ईद की नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे से गले मिलकर खुशियां बांटते हैं। महदूद वसाइल के बावजूद ये लोग ईद को उम्मीद, सब्र और शुक्र के जज्बे के साथ मनाते हैं। असली रोजे रखे ने, बच्चियां ने रखे ने, बुढ़िया ने रखे ने, बाला ने रखे ने, सारे रोजे लोग बच्चे रखे ने। ईदी भी बालन दिती है, गुजारा रिड़दा रहा साडा। बहुत अच्छी ईद गुजरी है, इंशाल्लाह असी भी ईद मनाते हैं और हर साल एवें ईद मनाते रहांगे। ईदा भी हुण मनाइंदे पए जिवें लोकां ने मनाइयां नु में असी भी मनाइंदे पए। ईद
की खुशियां हर तबके के लिए अहम हैं। जुगलियों में रहने वाले ये खाना बदोश खानदान भी अपने महदूद वसाइल के बावजूद ईद की खुशियों में शरीक नजर आते हैं और यही सादगी इनकी जिंदगी की असल खूबसूरती है। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। नाज़रीन, मुल्तान में ईद उल फितर के दूसरे रोज़ शहरियों की बड़ी तादाद ने मिठाइयों की दुकानों का रुख किया, जबकि हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया और हज़रत शाह रुकन आलम के मज़ारात पर हाज़िरी दी। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे फरहान मिर्ज़ा से। जी फरहान, अहलियान मुल्तान और ज़िले इंतज़ामिया की ईद उल फितर पर सरगर्मियों के हवाले से आगाह कीजिए। जी शुक्रिया। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में ईद उल फितर जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। हर तरफ ईद उल फितर के रंग हमें बिखरी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ मैं अगर बात करूँ तो आज ईद उल फितर के दूसरे रोज़ भी अहलियान मुल्तान जो है उन्होंने मिठाइयों की दुकानों का रुख कर लिया, जहाँ से ना सिर्फ वो खुद अपने लिए मिठाई खरीद रहे हैं बल्कि अपने अजीज़ों अकारिब के लिए भी ख़रीदारी का उनका सिलसिला जारी है। मुल्तान की सोन हलवे और मुल्तान की मिठाई अपने जायके खुशबू के हिसाब से हर जगह पहचानी जाती है। शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया और हज़रत शाह रुकन आलम के दरबार पर हाज़िरी दे रहे हैं और यहाँ पर फातह खानी कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर ओल्ड एज होम, चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर और मुल्तान के जो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जो है वो तहफ़ देने का सिलसिला जारी है, जिससे बच्चों और बुज़ुर्गों के चेहरों पर जो खुशी जो है वो दीदनी है। और शहर के माहौल को खूबसूरत रखने के लिए ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से खूबसूरत शजरकारी हमें देखने में आ रही है। मौसम बहार की मुनासबत से हम शाहराहों के ऊपर देख रहे हैं कि मुख्तलिफ रंगों के फूल जो हैं उससे ना सिर्फ माहौल खुशगवार हो गया है बल्कि शहरियों को एक साफ़ सुथरी फ़ज़ा भी मुयस्सर आ रही है। जी शुक्रिया फरहान मिर्ज़ा आपका। मुल्तान में ईद के हवाले से आगाह करने के लिए रुख करेंगे ननकाना साहब का, जहां ईद के मौके पर सफाई सुथराई के भी बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का सफाई ऑपरेशन जारी है। ईद के तीनों रोज जिला भर में लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के 2000 से जायद वर्कर्स 3 शिफ्टों में 24 घंटे ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से ज़िले की तमाम मसाजिद, लारी अड्डों, तफरीही मकामात और गली मोहल्लों में पानी का छिड़काव और खुसूसी सफाई की गई है ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। ईद के दिन शहरियों ने लाहौर के चिड़ियाघर, पार्कों, अजायब घर और दीगर तफरीही मकामात का रुख कर लिया है। इसी बारे में मज़ीद तफसील से आगाह कर रही हैं वर्दा सलीम। ईद का दिन हो और सैर सपाटे ना हो, ये कैसे मुमकिन है? यही वजह है कि ईद के दिन मुबारकबादें देने और ईद मिलने के बाद शहरियों ने घूमने फिरने की ठानी और तफरीही मकामात का रुख किया। लाहौर के चिड़ियाघर में गैर मामूली रश देखने को मिला और बच्चे और बड़े अपने मन पसंद जानवरों को देखते रहे। बंदर की अटकेलियाँ और शेर की धार दूर से ही शहरियों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती रही। ऐसे में जानवरों के साथ सेल्फी न हो, ये कैसे मुमकिन है? छोटी ईद है और हम ईद सेलिब्रेट करने हमने चिड़ियाघर आ गए। बच्चों को लेके आए, यहाँ पे जानवरों को दिखाने लेके आए। अभी हम दूसरी जगह पे जाएंगे, रेस कोर्स जाएंगे, फोर्ट्रेस वगैरह जाएंगे, झूले वगैरह लेंगे। यहाँ पे हम आए हैं अपनी फैमिली के साथ, चीज़ें खाई हैं, जानवर देखे हैं, हमें बहुत मज़ा आया है। हम लोग इधर चिड़ियाघर आए हैं, हमने सारे जानवर देखकर हमें बहुत खुशी हुई है। हम लोग यहाँ पे फैमिली के साथ आए हुए हैं, ठीक है, और अच्छा एंजॉय हो रहा है यहाँ पे। हम इस टाइम पार्क पे आए हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ, बहुत मजा आ रहा है हम सबको। शाम ढलते ही शहरियों ने रेस कोर्स पार्क, जिना पार्क और दीगर पार्कों का रुख किया। बच्चे आउटिंग करना चाह रहे थे इसलिए बाहर निकले हैं, तो इट्स अ वेरी गुड वेदर एंड अ नाइस एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट बड़ी अच्छी है। एप्रिशिएट द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कि उन्होंने बड़ा अच्छा इसको मैनेज किया हुआ है। बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, बड़ा माशाल्लाह से अच्छा खुशगवार मौसम है, बारिश हुई हुई है, बड़ा अच्छा लग रहा है। फैमिलीज आई हुई हैं, बहुत ही मतलब एक अच्छा गेट टुगेदर हो जाता है फैमिली का। ईद है और मतलब खुशी का दिन है ना। लाहौर में खुशगवार मौसम ने तो सोने पे सुहागे का काम किया और शहरी चिड़ियाघर और दीगर तफरीही मकामात पर खूब महसूस होते रहे। ईद की खुशियों को मजीद दुबाला करने के लिए शहरियों ने तफरीह गाहों का रुख कर लिया है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, मिठाई के बगैर ईद बिल्कुल फीकी फीकी। कराची में शहरियों ने मिठाइयों की खरीदारी करके ईद को मीठा और मज़ेदार बना दिया। तफसील बताएंगे सैयद जहांगीर अली अपनी इस रिपोर्ट में।
عید کی آمد کے ساتھ ہی خوشیوں کی مٹھاس ہر دل میں گھل جاتی ہے. یہی مٹھاس بازاروں میں سجی رنگ برنگی مٹھائیوں اور دلکش کیکس میں بھی جھلکتی نظر آتی ہے. شہر کی بیکریوں مٹھائی کی دکانوں پر رش جیتنی ہے, جہاں شہری اپنے پیاروں کے لیے خصوصی عید کی سوغات خریدنے میں مصروف ہیں. روایتی مٹھائیوں سے لے کر جدید ڈیزائن کے کیکس تک ہر چیز عید کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کا ذریعہ بن رہی ہیں. چاکلیٹ کیکس, کریم سے سجے خوبصورت ڈیزائنز اور خاص عید تھیم پر تیار کی گئی مٹھائیاں نہ صرف دیکھنے میں دلکش ہیں بلکہ ذائقے میں بھی بے مثال ہیں. مٹھائیاں مکس مٹھائیاں بھی لوگ لے لیتے ہیں, بعض جو ہے نا مکس باسکٹ وغیرہ بنوا لیتے ہیں, تو ماشاءاللہ عید کی خوشیاں چل رہی ہے. عید پہ جو ہے یہ میٹھی عید کہلاتی ہے, تو مٹھائی ہو گئے, کیک ہو گئے, اپنی جیسے بہنوں کے گھر پہ اور رشتہ داروں کے گھر پہ لے کے جاتے ہیں. ہم لوگوں نے چاکلیٹ کیک لیے, ہم لوگوں نے ونیلا کیک لیے, ہم لوگوں نے اور چپس وغیرہ لیے, نیم کو لیے ہیں. ہم لوگ اپنی پھپھو کے گھر جا رہے ہیں. یہاں سے ہم نے کافی ساری مٹھائیاں لی ہیں اور سموسے وغیرہ لیے ہیں, رون لیے ہیں. سوغات عید میں مٹھائی بہت ضروری ہوتی ہے, تو مائی فیوریٹ از نیوٹیلا کیک. شہریوں کا کہنا ہے کہ عید کی خوشیاں مٹھائی اور کیک سے بغیر ادھوری لگتی ہیں, اور یہی میٹھے تحفے اپنے پیاروں کے ساتھ خوشیاں بانٹنے کا بہترین ذریعہ ہیں. سید جہانگیر علی, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, کراچی. ناظرین, امریکی ریاست سیاٹل میں آج خالصتان ریفرینڈم ہو رہا ہے. ہزاروں سکھ ووٹنگ کے لیے تیار ہیں. ووٹنگ مقامی وقت کے مطابق اتوار کی صبح 9 بجے شروع ہوگی. خالصتان ریفرینڈم سکھ فار جسٹس کی عالمی مہم کا حصہ ہے. ریفرینڈم کی قیادت گرپتونت سنگھ پنو کر رہے ہیں. ڈاؤن ٹاؤن سیاٹل میں اس وقت خالصتانی جھنڈے لہرا رہے ہیں. ریفرینڈم میں شرکت کے لیے ہزاروں سکھ ووٹرز سیاٹل پہنچ رہے ہیں. مقامی سکھ تنظیمیں ووٹرز کی سہولت کے لیے کھانے پینے کے اہتمام سمیت تمام ضروری سہولیات فراہم کرنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. سیاٹل شہر کے بیچوں بیچ ایک دیو قامت خالصتانی پرچم نصب کر دیا گیا ہے. یہ سیاٹل کا پہلا ریفرینڈم ہے. امریکہ سے قبل کینیڈا اوٹاوا میں خالصتان ریفرینڈم 23 نومبر 2025 کو منعقد ہوا تھا. اس سے قبل لنڈن, ٹورنٹو, وینکوور, روم اور جنیوا سمیت پوری دنیا میں ریفرینڈمز منعقد ہوئے. گزشتہ ریفرینڈمز میں لاکھوں کی تعداد میں سکھوں نے خالصتان کے حق میں ووٹ ڈالے. بھارتی مخالفت کے باوجود امریکی حکومت نے ریفرینڈم کی اجازت دے دی. بھارت پر بیرون ملک سکھ رہنماؤں کو نشانہ بنانے کے بھی الزامات ہیں. بھارت نے کینیڈا میں سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجار کو جون 2023 میں کینیڈا میں قتل کر دیا تھا. بھارت, امریکہ اور برطانیہ سمیت دیگر کئی ممالک میں سکھ رہنماؤں کے خلاف قاتلانہ حملوں میں ملوث ہے. بھارتی دہشت گردی سے بھارت اور دنیا میں موجود سکھوں کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے. سکھ رہنما گرپتونت سنگھ پنو کا کہنا ہے کہ اگر بھارت کہتا ہے کہ سکھ ریفرینڈم کا کوئی اثر نہیں, تو پھر وہ بیرون ملک سکھ رہنماؤں کو مارنے کے لیے ڈیتھ اسکواڈ کیوں بھیجتا ہے. مجھے موت سے خوف نہیں اور میرا یقین ہے کہ پنجاب کی مزاحمتی تاریخ کی وجہ سے بھارت کا نقشہ آئندہ 10 سے 15 سال میں بدل جائے گا. فرانس بھر میں بلدیاتی انتخابات کا فیصلہ کن مرحلہ آج منعقد ہو رہا ہے, جس میں متعدد شہروں میں سخت اور کانٹے دار مقابلوں کی توقع کی جا رہی ہے. گزشتہ اتوار کو ہونے والے پہلے مرحلے کے بعد آج دوسرے مرحلے میں پہلے اور دوسرے نمبر پر آنے والے امیدوار آمنے سامنے ہیں, اور کئی حلقوں میں 1 to 1 مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے. ان انتخابات میں پاکستانی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے 3 نوجوان بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں, جن میں احمد خان, چودھری سفیان جاوید پکوال اور چودھری اشرف عارف مرالا شامل ہیں. تینوں امیدوار مختلف شہروں میں اپنے اپنے مرکزی امیدواروں کے ساتھ بھرپور انتخابی مہم میں شریک ہیں. سیاسی مبصرین کے مطابق آج ہونے والے ووٹنگ کے بعد شام تک نتائج سامنے آ جائیں گے, جس سے واضح ہو جائے گا کہ قسمت کس امیدوار کا ساتھ دیتی ہے. پاکستانی کمیونٹی کی نظریں بھی ان انتخابات پر مرکوز ہیں اور وہ اپنے نمائندوں کی کامیابی کے لیے پر امید دکھائی دے رہے ہیں. ناظرین, عید کے اس پرمسرت موقع پر ہمیں ان بزرگوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے جو مختلف وجوہات کی بنا پر اپنوں سے دور اولڈ ہاؤس میں رہتے ہیں. ان ضعیف العمر افراد کی عید کے حوالے سے دیکھتے ہیں کراچی سے سید جہانگیر علی کی اس رپورٹ میں. عید کی خوشیوں میں اپنے ساتھ بزرگوں کو شریک کرنا بھی ہمارا فرض ہے, جو مختلف وجوہات کی بنا پر اپنے سے دور اولڈ ہوم میں عید مناتے ہیں. کراچی میں JDC اولڈ ہاؤس میں رہائش پذیر لوگوں نے عید کی خوشیاں منائیں. عید کے پرمسرت موقع پر اپنے بچوں کی یاد ان بزرگوں کے دلوں میں تر و تازہ ہے جو انہیں اس اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کر چلے گئے. ہمارے اپنوں نے, جن کے لیے ہم لوگوں نے پوری زندگی برباد کی, اپنی زندگی برباد کر دی, اپنی کمائیاں برباد کر دی, سب کچھ ختم کر دیا. انہوں نے ہمیں گھر سے نکال دیا, اور دیکھو ظفر عباس صاحب نے ہمیں سنبھالا. ہر چیز A1 ہے, بالکل ٹینشن میں نہیں ہوں, اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اس عید کو بھی آپ لوگوں کے ساتھ عید گزارے تو آپ لوگوں کی بھی عید اچھی گزرے اور ہم لوگوں کی بھی عید اچھی گزرے. بس یہ دعا ہے, اور بہت ہیپی ہیں, بہت
अच्छी लाइफ गुजर रही है। इन बुजुर्गों का अकेलापन दूर करने के लिए और ईद की खुशियों का मजा दोबारा करने के लिए ईद की दावत का एहतमाम भी किया गया। ईद की मुनासबत से ओल्ड एज होम में सजावट भी की गई और उनको ईदी भी दी गई। बुजुर्गों ने वतन अजीज से मोहब्बत का इजहार करते हुए मिली नगमा भी गाया। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल। बुजुर्ग अफराद हमारे मुआशरे का तवज्जो तलब तबका हैं और उनका ख्याल रखना हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। फ़र्ज पहले खुशियाँ बाद में। पाक फ़ौज के जवानों का हर त्यौहार पर सरहदों की हिफाजत का पुख्ता अज़्म, बर्फीले पहाड़ों और आहनी अज़्म के साथ दुनिया के बुलंद तरीन महाज सियाचिन से पाक फ़ौज के बहादुर सपूत कौम को ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। सियाचिन के बुलंद बर्फानी चोटियों पर हमारे बहादुर जवान ईद जैसे खुशी के मौके पर भी वतन की खातिर डटे हुए हैं। वतन की सरहदों की हिफाजत के लिए मुस्तैद खड़े हैं। हमारी सबसे बड़ी खुशी यही है कि पाकिस्तान का हर शहरी अमन, सुकून और आज़ादी के साथ ईद की खुशी मना सके। इन बर्फानी चोटियों पर हर सिपाही के दिल में एक ही जज्बा है, वतन की हिफाजत और कौम की सलामती। आपकी दुआएं हमारी ताकत है और आपकी मोहब्बत हमारा हौसला। आप सबको ईद मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, ईद उल फितर पर जहां शहरी अपने प्यारों के संग ईद की खुशियों में मगन है, वहीं पुलिस एहलकार शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी खुशियां कुर्बान करके फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। मज़ीद तफ़सील इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में ईद उल फितर का समा है। हर सू खुशियां बिखरी हैं, मगर इन खुशियों के पीछे इन सरफरोशों की कुर्बानी है जो ईद के दिन भी अपने घरों से दूर ड्यूटी के कड़े इम्तिहान में सरखरू हो रहे हैं। ईद के इज्तिमाआत, तफरीही मुकामात और अवामी मराकिज़ पर सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। मुल्क की आम शाहराहों और हसास इलाकों में गश्त बढ़ा दिया गया है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े का सद्देबाब किया जा सके। हमारी कोशिश ये होती है कि पब्लिक को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत है वो हम दें, ताकि इनके चेहरों पर खुशियाँ रहे, बेखौफ हो के ये इंजॉय करें इस दिन को, और ये किसी किस्म का भी उनके अंदर कोई टेंशन पैदा ना हो। अवाम की खिदमत करना हमारा पुलिस का अव्वलीन तरजीह है। हमारी अवाम के चेहरों पे खुशियाँ लाना यही हमारी ईद है। ड्यूटी पर मामूर हैं, लोग आ रहे हैं, उनको चेक कर रहे हैं, उनसे भी अच्छी गुफ्तगू हो रही है, उनसे भी ईद मुबारकबाद चल रही है, वो भी हमें खुश अखलाकी से मिल रहे हैं। आपकी सेफ्टी के लिए हम यहाँ खड़े हुए हैं। शहरियों को चाहिए कि हमारे साथ तावन करें, और तावन करेंगे तो इंशाल्लाह सिक्योरिटी का निज़ाम बेहतर होगा। इबादत है ये भी लोगों की हिफाजत करना। सिक्योरिटी हकाम का कहना है कि अपने प्यारों से दूरी के बावजूद अवाम के चेहरों पर इत्मीनान देखना ही असल ईद है। शहरियों ने इन मुहाफिजों के बुलंद हौसले और जज्बे को भरपूर खराज तहसीन पेश किया है। कौम इन मुहाफिजों को सलाम पेश करती है जो हमारी खुशियों की खातिर अपनी ईद कुर्बान करते हैं। इनकी फर्जशनासी के बायस मुल्क भर में ईद का समा पुरअमन और महफूज है। मोहम्मद उस्मान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। ईद उल फितर की छुट्टियों के दौरान डिस्ट्रिक्ट जेल मंडी बहाउद्दीन में कैदियों और उनके अजीज़ व अकारिब को मुलाकात और PCO से बात करवाने की खुसूसी सहूलतें फराहम की गईं। डेप्यूटी कमिश्नर अदील हैदर ने जेल एसीरान से उनके अजीज़ व अकारिब और रिश्तेदारों से मुलाकात कराने के अमल का जायज़ा लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट जेल मंडी बहाउद्दीन का दौरा किया। जेल एसीरान के अजीज़ व अकारिब, रिश्तेदारों और उनके प्यारों की बड़ी बाइज़्ज़त तरीके से मुलाकातें कराई जा रही हैं। इस मौके पर डेप्यूटी कमिश्नर ने कैदियों को मुहैया की जाने वाली सहूलियात और दीगर इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। नाज़रीन, दुनिया भर में आज आलमी यौम आब मनाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये दिन तशवीश की अलामत बन चुका है। बढ़ते हुए दर्जा हरारत और ग्लोबल वार्मिंग के असरात से मुल्क में पानी की किल्लत संगीन हो रही है, जबकि ज़ेर ज़मीन पानी की सतह सैकड़ों फुट नीचे जा चुकी है। सईद वजीर की रिपोर्ट देखिए। रवा साल पानी के आलमी दिन जहां पानी बहता है वहां मसावात बढ़ती हैं के थीम के तहत मनाया जा रहा है। पाकिस्तान जो पहले ही पानी की किल्लत का शिकार ममालिक में शामिल है। अदाद व शुमार के मुताबिक 1951 में पाकिस्तान में पीकस पानी की दस्तियाबी 5260 क्यूबिक मीटर थी, जो कम होकर 899 क्यूबिक मीटर रह गई है। पाकिस्तान का तकरीबन 92% इलाका नीम खुश्क है और मुल्क में पानी जखीरा करने की सलाहियत सिर्फ 30 दिन के लिए है।
सुबह पंजाब में फीकस पानी की दस्तियाबी तकरीबन 760 क्यूबिक मीटर है, जबकि बलूचिस्तान में खवातीन और बच्चे मीलों दूर से पानी लाने पर मजबूर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियर्स का तेजी से पिघलना सैलाब और पानी की गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर रहा है। सुबह सिंध भी पानी की कमी और सैलाब जैसे दोहरी चैलेंजेस से दुचार हैं। पानी की किल्लत का सबसे ज्यादा बोझ खवातीन और लड़कियों पर पड़ता है। जहाँ तक पानी की अवेलेबिलिटी की बात आती है तो खवातीन सबसे ज्यादा मुतासिर होती हैं। खासतौर पर आप पाकिस्तान के गाँव और देहातों में देख लें तो खवातीन को घर की जरूरियात के लिए न सिर्फ बल्कि पीने के लिए भी जो है वो बहुत लंबा लंबा सफर करके फासला तय करके उनको पानी लाना पड़ता है। तो बड़ा जरूरी है कि खवातीन को साफ पानी का एक्सेस घर में होना चाहिए। ये काम न सिर्फ जिस्मानी तौर पर थका देने वाला है बल्कि ये उनकी तालीम, काम और सेहत को भी मुतासर करता है। माहिरीन का कहना है कि खवातीन को पानी के इंतजाम में शामिल करने से बहरान कम किया जा सकता है। गिलगित बल्तिस्तान में खवातीन की तरबियत के बाद पानी लाने का वक्त कम हुआ और तालीम के मौके बढ़े। पंजाब और बलूचिस्तान में ड्रिप इरिगेशन और बारिश के पानी के ज़खायर मुतारिफ किए जा रहे हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतें बहुत सा काम कर रही हैं, लेकिन मजीद बेहतरी के लिए ये ज़रूरी है कि औरतों को बहुत सी जगहों पे दूर दराज मुकामात से पानी लेके आना पड़ता है। इन इंतजामात को अगर ठीक कर लिया जाए तो बहुत बेहतरी होगी। पाकिस्तान के ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं और अगर यही रफ्तार रही तो आने वाले दहाई में शदीद आबी बहरान का सामना हो सकता है। आलमी योम आब हमें याद दिलाता है कि पानी ज़ाया करना दरअसल जिंदगी ज़ाया करने के मुतरादिफ है। अगर आज हमने पानी की ज़खायर की तामीर, ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ और पानी के दानिशमंदाना इस्तेमाल के लिए इक़दामात न किए तो मुस्तक़बिल में ये मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। सईद वज़ीर, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद।